فرحانہ ہمارے محلے میں نئی نئی آئی تھی۔ جلدی اس کے نیک ہونے کے چرچے ہمارے پورے محلے میں ہونے لگے کہ یہ لڑکی بڑی شریف ہے۔ اپنی ماں کے منہ سے میں فرحانہ کی اتنی تعریفیں سن چکا تھا۔ میری ماں کو فرحانہ اتنی پسند آئی کہ وہ کہنے لگی کہ میری تو خواہش ہے کہ فرحانہ میری بہو بنے، وہ میرے گھر میں آ گئی تو میرے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اپنی والدہ کے منہ سے ایک لڑکی کی اس قسم کی اور نیک عادتوں کی اتنی تعریفیں سن کر مجھے بھی خواہش ہونے لگی تھی کہ میری بیوی ایسی ہی لڑکی ہو۔ میری والدہ نے فرحانہ کے والدین سے میرے لیے فرحانہ کا رشتہ مانگا تو انہوں نے رضامندی دے دی۔ میں بہت خوش تھا، میری خواہش تھی کہ میں اسے ایک نظر دیکھوں، لیکن جب میں نے اپنی خواہش اپنی والدہ کے سامنے رکھی تو میری والدہ کہنے لگی کہ وہ بہت ہی پردے دار لڑکی ہے، اس کے گھر والے بھی مذہبی قسم کے ہیں، تصویر مانگنے پر بھی کہیں اعتراض ہی نہ کر دیں۔ میں تو ٹھنڈی آہیں بھرتا رہ گیا۔ 3 مہینے بعد شادی تھی اور ان 3 مہینوں میں میں جانتا تھا کہ فرحانہ کی ایک جھلک بھی دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری بےتابیاں فرحانہ کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ آئے روز جب امی ان کے گھر سے ہو کر آتی تو اس کی تعریفیں کرنے لگتی کہ آج تو فرحانہ بڑی پیاری لگ رہی تھی، اس نے بڑے مزے کی چائے بنائی تھی، کھانا کھائے بغیر مجھے آنے ہی نہیں دیا، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ یہ سب سن کر دل میں مجھے اپنی منگیتر سے شدید محبت ہو چکی تھی۔ اس لیے شادی کی رات تو میری بےتابیاں پوری شدت سے عروج پر تھی۔ میرے جذبات میرے اندر ٹھاٹے مار رہے تھے۔ شادی ہال بھی میرے سسرال والوں نے ایسا ارینج کیا تھا کہ عورتوں کا الگ انتظام تھا اور مردوں کا الگ۔ رخصتی تک میں نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا اور رخصتی پر بھی اس کے اوپر لمبی چوڑی سی چادر اوڑھا دی گئی تھی اور وہ پوری کی پوری چھپی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے ساتھ میں گھر میں داخل ہوا تو میری بہنیں اسے میرے کمرے میں لے گئی۔ مجھے میرے دوست لے کر بیٹھ گئے، جانتے تھے کہ میں اس وقت تنہائی چاہتا ہوں۔ بیوی کے علاوہ تو مجھے آج کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن دوست جان چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بمشکل ساری رسموں سے جان چھڑا کر رات کے 12 بجے مجھے کمرے میں جانا نصیب ہوا۔ کمرے میں داخل ہوا تو گلاب اور کلیوں کی مشہور کن خوشبو نے میرا استقبال کیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی میری دلہن میری آمد پر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ پہلی نظر اس کے سفید دودھیا پاؤں پر پڑی، جس پر لگی مہندی نے میرے دل کو دھڑکا کے رکھ دیا۔ دوسری نظر میری اس کے خوبصورت مومی ہاتھوں پر پڑی، جس پر سرخ رنگ کی چوڑیاں ہاتھوں پر لگی مہندی کے نقش و نگار اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا رہے تھے۔ بس چہرہ ابھی تک گھونگھٹ میں چھپا تھا۔ میں دھیرے سے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت میرا دل، میری دھڑکنیں میرے اختیار سے باہر تھی۔ خود بخود میرے چہرے پر دل فریب سی مسکان آ کر ٹھہر گئی۔ 3 مہینے میں نے بس فرحانہ کے تصور ہی تو باندھے تھے، ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، لیکن میرے بیٹھتے ہی وہ اچھل کر کچھ پیچھے ہٹی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر حیرت ہوئی، لیکن شاید وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو وہ بہت خوبصورت تھی، میرے تصور سے بھی بڑھ کر، لیکن وہ بہت ہی زیادہ نروس لگ رہی تھی۔ ویسے تو آج کل کے دور کی لڑکیاں اتنی زیادہ شرماتی ورماتی نہیں ہیں، لیکن فرحانہ جیسی لڑکی سے میں یہ امید رکھ سکتا تھا، کیونکہ اپنی والدہ کے منہ سے جو تعریفیں میں نے سنی تھی ان میں شرم و حیا کا ہونا بھی شامل تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے منہ دکھائی کی انگوٹھی پہناتا، وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے آہستہ سے کھینچنے لگی۔ میں نے کہا، تم میرے تصور سے بھی زیادہ حسین ہو۔ 3 مہینے میں نے تمہیں بنا دیکھے بڑی مشکل سے گزارے ہیں۔ میں نے اپنی بےتابیوں کا ذکر فرحانہ سے کرنا شروع کر دیا، لیکن جیسے جیسے میں اس کی تعریفیں کر رہا تھا اور اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، بجائے اس کے کہ وہ بلس ہوتی یا شرم آتی، وہ گھبرا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت میک اپ میں بھی مجھے پھیکی پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ میں اس کی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ ایسی بھی کیا جھجک، لڑکیاں تو اس رات کے بہت سے خواب سجائے پیا کے آنگن میں قدم رکھتی ہے۔ میری خواہش تھی کہ اپنی بیوی کا زیور میں اپنے ہاتھوں سے اتارتا اور ساتھ ساتھ اس کی تعریفیں بھی کرتا جاتا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے ماتھے پر لگے جھومر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً سے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ کہنے لگی، میں خود اتار دوں گی۔ مجھے اس کا یہ رویہ کچھ عجیب و غریب سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، نہیں فرحانہ، میری خواہش ہے کہ یہ کام میں کروں،
आज के दिन तो तुम्हारी खिदमत मैं अपने हाथों से करना चाहता हूँ, फिर सारी जिंदगी तुमने ही तो मेरी खिदमत करनी है। बजाय मेरी बात पर खुश होने के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि बस अपने घर से जुदा होने का गम है। मैं उसकी हिचकिचाहट अब समझा था। पहली रात की झिझक फरहाना में कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन मेरी वो रात बेहद हसीन गुजरी थी। मैं गहरी नींद में सो रहा था जब मुझे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। एकदम मेरी आंख खुली। नींद का मैं शुरू से ही कच्चा था, जरा सी आहट पर मेरी आंख खुल जाया करती थी। नींद की बेहोशी में मैंने बमुश्किल आंखें खोली। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सिसकियों की आवाज अभी भी मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मैं उठ बैठा, लेकिन जैसे ही उठा सामने फरहाना जाए नमाज बिछाए दुआइयां अंदाज में हाथ उठाए रो रही थी। इस अंधेरे में मुझे उसका सफेद दुपट्टे में लिपटा हुआ वजूद देखकर अंदाजा हो गया था कि वो नमाज पढ़ रही है। लेकिन जैसे ही खिड़की के बाहर मेरी नजर गई, बाहर तो गुप अंधेरा था। फरहाना सिसकियों से रो रही थी। मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो रात के 3 बज रहे थे। फजर की अजान तो 5:30 बजे शुरू होती थी। इस वक्त वो क्या पढ़ रही थी? फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद वो इस वक्त तहज्जुद पढ़ रही होगी। मेरे दिल में फरहाना की इज्जत और भी बढ़ गई। वो 5 वक्त की नमाजी नहीं बल्कि तहज्जुद गुजार भी थी। चलो नमाज पढ़ना तो मुझे समझ में आता था, लेकिन सिसकियों से रोना मेरी अकल से बाहर था। उसे तो शुक्राने के नफिल अदा करने चाहिए थे, खुश होना चाहिए था। उसकी जिंदगी की बेहतरीन शुरुआत हुई थी, लेकिन वो रो रही थी। वो क्यों रो रही थी? उसकी सिसकियों ने मुझे परेशान किया था। मैं उठकर बैठ गया, तकिया सही किया और बेड के क्राउन के साथ टेक लगाकर बैठ गया। फरहाना शायद मेरे जाग जाने से नावाकिफ थी, इसलिए दुआ करते करते उसकी आवाज कुछ बुलंद हुई, जो कि मेरे कानों में भी टकराई थी। जो बात वो रब के हुजूर कह रही थी, उसने तो मुझे कुछ पल के लिए हवास बाख्ता सा कर दिया था। कहने लगी, ए अल्लाह, मुझसे रात को गुनाह हो गया है, मुझे इस गुनाह की माफी दे दे। ये सुनकर तो मेरी आंखें पूरी की पूरी खुल गई। वो ये क्या कह रही थी? मैं तो उसकी बात सुनकर ये सोचने समझने से ही काशिर हो गया था। पहले तो मुझे लगा शायद मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है, मगर फिर से वो यही कह रही थी कि रात को उसने गुनाह किया है, जिसकी माफी वो यूं रो रो कर मांग रही थी। ये सुनकर मेरे हवास खोने लगे थे कि आखिर मेरी बीवी ने रात को ऐसा क्या गुनाह किया है। गुनाह का खौफ तो उसे उस वक्त होना चाहिए था अगर वो मुझे हक जोजियत अदा करने देती। मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग साए साए करने लगा। मेरा दिमाग काम करना बंद करने लगा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ये बात क्यों कह रही है। क्या उसकी शादी उसकी रजामंदी से नहीं हुई, इसलिए उसे ये सब गुनाह लग रहा है? एक के बाद एक वसवसा मेरी जान निकाले हुए था। कुछ देर बाद फरहाना की सिसकियां बंद हुई। उसने अपने आंसू पोंछे और जा नमाज बंद करके एक तरफ रख दिया। लेकिन जैसे ही पलटकर मुझे देखा तो उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी। मुझे जागता देखकर और अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर वो घबराई थी। झिझक कर मुझसे कहने लगी, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैंने कहा, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। मैं उस वक्त संजीदा था। धीरे धीरे वो चलते हुए मेरे करीब आ गई और बेड पर फासला रख कर बैठ गई। मैंने कहा, क्या बात है? फरहाना रो क्यों रही थी? मेरी बात पर उसने नजरें चुरा ली। मैंने साइड टेबल का लैंप जला दिया। अब उसका चेहरा मुझे साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा, बताओ क्यों रो रही थी? वो कहने लगी, बस मुझे आदत है, मैं दुआ मांगती हूँ तो ऐसे ही रोती हूँ, इसलिए आप मेरी सिसकियों से और मेरे रोने से परेशान मत हुआ करें। ये कहकर वो खड़ी होने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ मैंने अपनी तरफ जोर से खींचा तो वो मेरे करीब हो गई। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब था। मैंने उसकी आंखों में देख कर कहा, क्या गुनाह किया है तुमने? किस गुनाह की माफी मांग रही हो? बताओ मुझे। मेरी बात पर तो जैसे उसकी जान निकल गई। मेरा लहजा उस वक्त सख्त था। मेरी आंखों में गुस्सा फूट आया था। जो बात मेरे कानों ने सुनी हो वो कोई छोटी बात तो न थी। किस गुनाह की बात कर रही थी? उसने अपना हाथ मेरे हाथ से खींचकर मेरे हाथ से पीछे किया। कहने लगी, आपको सुनने में कोई गलती हुई है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये कहकर उसने तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गई। मुझे उसकी इस हरकत से और भी गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, फरहाना, ये क्या बदतमीजी है? इधर आओ, मेरे पास आकर लेटो। वो कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ना तो मुझे नींद आ रही है और ना ही मैं सोना चाहता हूँ और ना तुम्हें सोने दूंगा। जल्दी से इधर आओ, मैं तुम्हारा शोहर हूँ और मेरा हुक्म मानना तुम पर फर्ज है। वो मुझे झिझक कर कह रही थी और मुझे इस वक्त उसकी सदा पर भी प्यार आ रहा था।
मेरी ये बात सुनकर वो मेरा इरादा समझ गई थी। मेरी बात को समझते ही उसके चेहरे की रंगत फिर से फीकी पड़ने लगी थी। बार बार वो अपनी उंगलियां चटका रही थी, जैसे कि समझ नहीं पा रही हो कि उसे क्या करना चाहिए। मैं बेड से उठा और तेज कदम उठाता हुआ सोफे तक पहुंचा, उसे बाजू से पकड़ा और अपने साथ बेड पर ले आया। जैसे ही मैं उसके करीब होने लगा वो मुझसे कतराने लगी, लेकिन मुझे कहाँ परवाह थी। शादी के शुरू के दिन थे और इन दिनों में तो बीवी की संगत बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे लगा कि वो दुआ में कुछ और कह रही होगी, मेरे ही सुनने में गलती हुई है। लेकिन अगली रात फिर यही हुआ। उस रात को भी जैसे ही मैंने अपना हक वसूल किया, वो फौरन से मुझसे पीछे हट गई और जल्दी से गुस्ल करने के लिए वॉशरूम में चली गई। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। उसका रवैया मेरे साथ ऐसा था कि जैसे मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ और वो बेबस है, मजबूर है, जैसे कि इस रिश्ते में उसकी अपनी कोई भी रजामंदी शामिल नहीं है। ये बात एक मर्द होते हुए मुझे खटकने लगी थी। एक बार तो मैंने उसकी आंखों से बहते आंसू देखे थे। वो लगातार मेरी कुर्बत से घबरा रही थी और ये शर्माना नहीं था, ये तो कुछ और ही था। एकदम मैं उससे पीछे हट गया। मुझे उस पर गुस्सा भी आने लगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत का जवाब अभी तक उसने मुझसे मोहब्बत से नहीं दिया था। जब भी मैं करीब आने की कोशिश करता, एक उकताहट उस पर सवार होती थी। मुझसे कतराना, घबराना, खुद को मुझसे पीछे करना, सारा वक्त वो इसी में गुजार देती थी। कभी कभी मुझे लगता जैसे कि वो किसी दर्द से गुजर रही है। क्या मेरा रिश्ता उसके लिए एक दर्द था? अगर था तो एक मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बीवी का ऐसा रवैया हरगिज नहीं। मैं फौरन से बेड से उठकर सोफे पर जाकर लेट गया। मुझे मोहब्बत के बदले फरहाना से मोहब्बत चाहिए थी, ना कि उकताहट। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोचता रहा कि आखिर फरहाना के साथ मसला क्या है। पूरा एक हफ्ता मैं दोबारा फरहाना के पास नहीं आया और उसने भी मुझे एक बार मनाने की कोशिश नहीं की। हर दिन वो रात को रोती रहती और न जाने किस गुनाह की माफी मांगती रहती। अब तो मेरी बर्दाश्त जैसे जवाब देने लगी थी। एक बार वो जायनमाज पर रो रही थी कि मैं उसके पास उठकर जायनमाज पर आ गया। मैंने सोचा कि इस वक्त वो वुजू की हालत में है, वो जायनमाज पर है, इसलिए मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि जब भी मैं उसके रोने की वजह पूछता तो वो टाल जाती थी। मैंने कहा, मुझे बताओ कि तुम किस चीज की तौबा मांगती हो? जब भी मैं तुमसे पूछता हूँ तुम बात टाल जाती हो, लेकिन आज तुम जायनमाज पर बैठी हो, मुझे सच सच बताओ क्यों रोती हो तुम? वो कहने लगी कि मैंने जिना किया है। ये सुनकर मुझे फरहाना पर जितना भी गुस्सा आता कम था। मैंने कहा, किससे जिना किया है? वो कहने लगी, आपसे। वो उस वक्त मुझे नहीं देख रही थी, अपने हाथों को देख रही थी। लग रहा था कि जैसे वो किसी और ही सोच में थी, बस रोए जा रही थी। फिर सामने जायनमाज पर देखते हुए कहने लगी, ए अल्लाह, मैंने अपने शौहर से जिना किया है। मैं पाक नहीं हूँ, मैं नापाक हो चुकी हूँ। या अल्लाह, तू मुझे पाक कर दे। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे हैरत से देखा। मुझे लग रहा था कि जैसे वो अपने होशो हवास में नहीं है। जो कुछ उसने कहा था मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं था। क्या वो पागल थी जो शोहर के साथ जायज रिश्ता जोड़ने को जिना जैसे कबीरा गुनाह का नाम दे रही थी? मैंने फरहाना को बाजू से पकड़कर झिंझोड़ कर रख दिया। मैंने कहा, बताओ कब जिना किया है तुमने मुझसे? मेरे अंदर तो जैसे आग सी लग गई थी, लेकिन शायद वो अब अपने विजन से बाहर आ गई थी। मुझे गुस्से में देखकर घबराई। मैंने कहा, तुम होश में तो हो? मैं तुम्हारा शोहर हूँ, हमारे बीच में कायम होने वाला रिश्ता हर तरह से जायज है। तुम क्यों इसे जिना का नाम दे रही हो? मेरी बात सुनकर वो जायनमाज से खड़ी हो गई। कहने लगी, आप मेरे पास मत आया करें, मुझे अपना वजूद गुनाहगार लगता है, मुझे खुद से नफरत होने लगती है, प्लीज मुझसे दूर रहा करें। वो रोए जा रही थी, मेरे सामने हाथ जोड़े वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बातें कर रही थी। मैं उसे वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया, लाउंज में जाकर बैठ गया। मेरा सर चकराने लगा था कि कैसे वो हमारे रिश्ते पर गुनाह का ठप्पा लगा सकती थी। इतनी नासमझ तो वो नहीं थी, ना ही कम उम्र थी। फिर ये सब क्या था? मुझे यूं लाउंज में बैठा देखकर मेरी वालिदा, जो अपने कमरे से तहज्जुद के लिए बाहर निकली थी, मुझे देख ठिठक गई। फिर कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। ये सुनकर मेरी वालिदा मेरे पास बैठ गई। मुझसे वजह पूछने लगी कि आखिर मसला क्या है। मैंने सारी बात अम्मी को बताई तो वो कहने लगी, शायद वो नमाज कुरान ज्यादा ही पढ़ती है, उसे पाक साफ रहने की आदत है, इसलिए कह दिया होगा। लेकिन मैं जानता था कि ये बात नहीं है, बात कुछ और है। एक बार मैंने अपनी बीवी को फोन पर बात करते हुए देखा, मगर जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ उसने फौरन से फोन बंद कर दिया। अगर फरहाना अपने वालिदैन से भी बात कर रही होती तो मेरे आने पर फोन क्यों बंद कर दिया?
वो बात को जारी भी रख सकती थी। इसी तरह वो बात बात पर यूं चौंक जाती जैसे जहनी तौर पर यहाँ मौजूद ही ना हो। मैं पूछता क्या हुआ तो वो नहीं में सर हिला देती। मुझे अब फरहाना पर शक सा होने लगा था। वो अब आए रोज मायके जाने लगी थी। जब मायके से वापस आती तो आंखें रो रो कर सूजी होती और वजह वो मुझे बताती नहीं थी। एक बार मैंने फरहाना को एक लड़के के साथ देखा। मैं किसी दोस्त से मिलने होटल में गया था, जहां मैंने फरहाना को एक लड़के के साथ एक कमरे में जाते हुए देखा। ये देखकर मैं सांस लेना भूल गया। मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ कैसे एक कमरे में जा सकती है। मेरा जी तो चाहा कि दरवाजा जोर से बजा दूं, लेकिन मैं अपनी बीवी का तमाशा नहीं लगाना चाहता था। इसलिए मैं खामोशी से घर चला आया। घर आया तो अम्मी खाना बना रही थी। हालांकि मैं जानता था कि फरहाना कहाँ है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी वालिदा से फरहाना के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। मेरी वालिदा कहने लगी मायके गई है। फिर कहने लगी कि फरहाना की वालिदा की तबीयत शायद ठीक नहीं है, इसलिए मिलने गई है। कुछ देर बाद फरहाना वापस आ गई। अभी भी उसकी आंखें उलझी हुई सी थी और वो रो रही थी। मेरी वालिदा ने उससे पूछा कि उसकी वालिदा अब कैसी है, तो कहने लगी अब बेहतर है। ये कहकर वो कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे कमरे में आ गया। मेरे अंदर तो उस वक्त आग सी लगी हुई थी। मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फरहाना से पूछने लगा कि वो कहाँ से आ रही है। कहने लगी मैं अपने घर थी। मैंने कहा कि मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें खुद होटल के कमरे में एक गैर मर्द के साथ जाते देखा है। कौन था वो शख्स? मैंने गजबनाक लहजे से पूछा तो रोने लगी। कहने लगी वो लड़का उसका शोहर था। ये सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने कहा क्या कहा तुमने? वो रोने लगी। कहने लगी मैं सच कह रही हूँ। हम्माद से उसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी और फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। लेकिन वो लड़का कहने लगा कि वो अभी जॉबलेस है, इसलिए जब तक उसकी जॉब नहीं लग जाती वो फरहाना के घर रिश्ता नहीं ला सकता और ना ही उसे छोड़ सकता है। फरहाना उस लड़के की बातों में आ गई और उससे खुफिया निकाह कर लिया। लेकिन उस लड़के ने नौकरी लगने के बाद भी फरहाना का रिश्ता नहीं भेजा। फिर मेरा रिश्ता फरहाना के साथ तय हो गया। वो कहने लगी कि उसने उस लड़के से कहा कि वो फरहाना को तलाक दे दे, क्योंकि कुछ दिन बाद हमारा निकाह होगा तो कैसे हो सकता है। वो निकाह पर निकाह नहीं कर सकती और ना ही अपने घर वालों को अपने पहले निकाह का बता सकती है। लेकिन वो लड़का नहीं माना और फरहाना का मुझसे निकाह हो गया। इस हिसाब से तो वो वाकई मेरे निकाह में नहीं थी और हमारा रिश्ता जिना था। मैंने उस लड़के का पता पूछा और उससे खुद मिलने चला गया, क्योंकि वो अब फरहाना से आए रोज पैसे मांगने लगा था। मैंने उसके पास जाकर उसे बहुत मारा और कहा कि अगर उसने फरहाना को तलाक नहीं दी तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। वो लड़का डर गया, इसलिए उसने फरहाना को तलाक दे दी और इद्दत पूरी होते ही मैंने फरहाना से दोबारा निकाह कर लिया और उसकी इस बात पर पर्दा भी डाल लिया, क्योंकि फरहाना इज्जत तो मेरी थी। लेकिन लड़कियों को ऐसे कदम जज्बात में आकर नहीं उठाने चाहिए। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, आमीन।